Hello everyone. In continuation with the network security, in this session we shall know about data encryption standard DES. Popularly it is known as DES. So what is the need of data encryption standards? First of all, we try to understand this one. See what happens when data transmitted through an internet, then what happens? There is a threat of intercepting data by an unauthorized third party whom we call hackers or adversaries, who grab the data and then the data are modified as per desires of the adversaries. So to protect data from these adversaries, unauthorized third party, the data are encrypted at the sender's end, and the encrypted text, which we call ciphertext, gets transmitted through the network to the destination, to the receiver's end. At the receiver's end, what happens? The ciphertext is converted into the plain text, back into the original plain text. So at the sender's end, data are converted into ciphertext, plain text is converted into ciphertext. So how this plain text is converted into the plain ciphertext? What happens there? There is an algorithm, there is a process which we call encryption process or encipherment process. Here encryption algorithms work and that convert plain text into the ciphertext. There are number of conversion encryption algorithms. Among one of them, data encryption standard has been proposed by NIST, National Institute of Standards and Technology. National Institute of Standards and Technology ने सबसे पहले डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड को पब्लिश किया, जिसका काम यह है कि जो प्लेन टेक्स्ट सेंडर भेजता है, ओरिजिनल टेक्स्ट जो रीडर पढ़ सकता है, उसको ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में, जिसको साइफर टेक्स्ट कहते हैं, जिसको यूज़र कोई पढ़ नहीं सकता, कोडेड होता है, उसमें इसको कन्वर्ट कर देता है। तो ये डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड है क्या? ये एक सिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर एल्गोरिदम है। सिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर एल्गोरिदम, सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन का दो तरह का एन्क्रिप्शन होता है। एक होता है सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन, दूसरा एसिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन। सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन में दोनों एंड पर, एट द सेंडर्स एंड एज वेल एज एट द रिसीवर्स एंड, द secret key remains same. That's why it is called symmetric key encryption. Whereas in asymmetric key encryption, the two keys at the sender's end as well as at the receiver's end, these two keys are different, do not match. That's why it is called asymmetric. So data encryption standard is a symmetric key block cipher algorithm. Block cipher, we know that encryption is done in two modes, stream ciphers and block ciphers. Stream cipher में जैसा हम जानते हैं कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एन्क्रिप्शन होता है, जबकि ब्लॉक साइफर में ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को एक साथ ब्लॉक करके फिर उसका एन्क्रिप्शन होता है। सो इट इज़ अ ब्लॉक साइफर। तो पिछले सेशंस में हम लोगों ने जाना है फिस्टल स्ट्रक्चर। ये डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड पूरा का पूरा फिस्टल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है।
फेडरल स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल पर ये डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड्स DES बेस्ड होता है. इसमें हमारा जो प्लेन टेक्स्ट होता है दैट इज ऑफ 64 बिट्स. सो इज द ब्लॉक साइज, मीन्स ब्लॉक साइज इज 64 बिट. प्लेन टेक्स्ट भी 64 बिट्स और ब्लॉक साइज भी 64 बिट्स. और एन्क्रिप्शन के बाद जो साइफर टेक्स्ट मिलता है दैट इज ऑल्सो ऑफ 64 बिट्स. सो देर इज नो लॉस ऑफ बिट्स और नो गेन ऑफ बिट्स. यानी 64 बिट्स का प्लेन टेक्स्ट लिया, DES से उसको हमने एनक्रिप्ट किया. इस एनक्रिप्शन के बाद जो साइफर टेक्स्ट मिला दैट इज ऑल्सो ऑफ 64 बिट्स. नाउ द secret key that we use is also of 64 bits. ओके, जो की साइज होता है, जो की सीक्रेट की हम लोग यूज़ करते हैं एल्गोरिदम में, उसका साइज भी 64 बिट्स ही होता है. सब की का साइज 48 बिट्स होता है. सब की का साइज 48 बिट्स. सब की कहने का मतलब यह हुआ यहाँ पर कि ये जो फेजल स्ट्रक्चर है उसमें 16 राउंड्स में कन्वर्सन्स होते हैं. 16 राउंड्स. सो DES also follows the Pfister principle, and therefore the total number of rounds in DES is 16, and for each round we generate sub keys from the master key, this master key which is of 64 bits. But the size of the master key is 64 bit, which is converted to 48 bits sub key. So the size of sub key is 48 bits. Total number of rounds is 16. So the total number of sub key would be 16. For each round there is one sub key. Fine. So block size is 64 bits. That is of plain text also. After conversion, after encryption, the cipher text that is generated is also of 64 bits. The secret key size 64 bits, sub key size 48 bits, and the total number of rounds is 16. Why there is 16 number of rounds? This is because to confuse and diffuse the adversaries, the hackers, unauthorized third party, जितने राउंड्स हम बढ़ाते जाते हैं वो पूरा जो साइफर टेक्स्ट है वो कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है. एक राउंड होगा कॉम्प्लेक्स होगा, 2 राउंड होगा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, 3 राउंड होगा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा. 16 राउंड्स के बाद कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द एडवर्सरीज वो बहुत बढ़ जाती है. राइट. सो व्हाट हैपन्स इन DES, we see here, we take 64 bits plain text, it enters into DES cipher algorithm, the entire algorithm that we are going to study, and after this DES cipher process 64-bit ciphertext is generated that traverses through the network, and at the receiver's end when this 64-bit ciphertext reaches here, the DES reverse cipher process takes place. The algorithm runs in reverse order of this DES cipher, and this 64-bit ciphertext gets converted into 64-bit plain text. Clear? 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट लिया, वो DES एल्गोरिदम में एंटर किया. उस एल्गोरिदम को कर लेने के बाद 64 बिट साइफर टेक्स्ट में, कोडेड टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, जो इंटरनेटवर्क में सिक्योर्ड नेटवर्क चैनल में रिसीवर एंड्स तक जाएगा. जब रिसीवर एंड पर पहुंचेगा तो ये 64 बिट साइफर टेक्स्ट DES के रिवर्स साइफरिंग प्रोसेस में चला जाएगा, और उसके बाद फिर 64 बिट प्लेन टेक्स्ट रिसीवर को मिल जाएगा. सो दिस हैपन्स इन DES algorithm. So now we see in brief, in more detail, but in brief, what happens actually. We take 64-bit plain text, 64-bit plain text that enters into a process
what we call initial permutation. This is nothing else but rearrangement of bits or transposition of bits. The position of bits are rearranged. Okay, so here one complexity has been imposed, but it is predefined. Everybody has to follow that predefined order only, but still this the position of the bits are reorganized. That is called transposition. Now after this initial permutation, 64-bit plain text is divided into two halves, two equal halves, left half and right half, that we would see ahead. Now this plain text enters into round 1, phasal structures round 1. And here in round 1, parallelly, the 64-bit key generates through a key generator 48-bit sub key. So what happens here? 64-bit key is converted into 56-bit. PC is called permuted choice. So 64-bit key is converted into 56-bit. Now this 56-bit enters into another PC2, permuted choice 2. Now this 56 bits get converted into 48-bit sub key 1. Now with this 48-bit, the round 1 is completed. Then the output of round 1 enters into round 2. Here again another key, another sub key of 48-bit is also generated by this key generator, and that enters into round 2 and round 3, round 4 and so on up to round 16. So there are in total 16 sub keys. Then after, the output of round 16 enters into an inverse initial permutation function or final permutation function. Okay, and after this ciphertext is received. It means this plain text gets converted into 64 bits plain text. Okay, now we would further understand it in elaborated form, further elaborated form. See here, ये जो 64-bit plain text है, ये दो equal halves में बट जाता है, each of 32 bit, left half L1, right half R1. Both are of 32 bits each. Now right half, as we have seen in phasor structure, right half enters into a function, round function, and a key sub key K1 is inserted in it. तो एक फंक्शन यहाँ काम करेगा किस पर? राइट हाफ R1 यूजिंग सब की K1, और इसका आउटपुट लेफ्ट हाफ से एग्जॉर कर जाएगा, एग्जॉर ऑपरेशन होगा, और फिर इसका जो आउटपुट होगा और ये जो राइट हाफ है ये दोनों एक दूसरे से स्वैप कर जाएगा. राइट हाफ वुड बिकम लेफ्ट हाफ एंड लेफ्ट हाफ वुड बिकम राइट हाफ. सो ये जो लेफ्ट हाफ है वो राइट हाफ हो जाएगा R2, और ये जो राइट हाफ है दैट बिकम्स लेफ्ट हाफ. सो ईच ऑफ 32 बिट. नाउ दिस L2 and this R2 becomes input to the next round. So this is one round. Clear? This is one round. अब इसको और डिटेल में हम लोग समझते हैं क्या होता है. देखें, ये 64 बिट प्लेन टेक्स्ट है जो इनिशियल परमुटेशन में एंटर किया, उसके बाद ये 64 बिट ही रहता है, फिर ये राउंड 1 में एंटर किया. इसी समय जब राउंड 1 में ये एंटर करता है, हमारा जो पैरेलल में ये काम होगा, हमारा जो मास्टर की है वो 64 बिट का है. ये एक परमुटेड चॉइस 1 प्रोसेस में एंटर करता है जिसमें एर्थ बिट को, मल्टीपल ऑफ 8 के बिट नंबर पोजीशन वाले बिट्स को रिमूव कर दिया जाता है.
तो इन टोटल 8 बिट्स हट जाएंगे, जैसे 8th 16th एंड सो ऑन, 24th 32nd एंड सो ऑन। इसलिए इसको हम लोग पैरिटी ड्रॉप प्रोसेस भी कहते हैं। तो ये जब 8 बिट इसमें से हट जाता है तो ये 64 बिट कितना हो जाता है, 56 बिट का हो जाता है। 64 बिट था ओरिजिनली, लेकिन जब ये PC1 में गया, परमिटेड चॉइस 1 में गया, तो इसमें से 8 बिट हट गया और ये कितना हो गया, 56 बिट का हो गया, जो फिर एक प्रोसेस में एंटर करता है, उसको कहते हैं लेफ़्ट सर्कुलर शिफ्ट, LCS, लेफ़्ट सर्कुलर शिफ्ट, यानी शिफ्टिंग ऑफ बिट्स। यहाँ पर बिट्स को शिफ्ट किया जाता है, जिसको हम लोग डिटेल में फिर समझेंगे। अब ये 56 बिट परमुटेड चॉइस 2 में एंटर करता है, इसको PC2 भी कहते हैं या P बॉक्स भी कहते हैं। परमुटेड चॉइस 2 में एंटर करता है। परमुटेड चॉइस 2 में क्या होता है, इट अगेन लूजेज 8 बिट्स। 8 बिट्स आर अगेन रिमूव्ड, causing to the size of 48 bit. So it is key 1 that enters into round 1. ये key 1 है 48 बिट का, जो राउंड 1 में जाता है। अब फिर ये इसका आउटपुट राउंड 2 में चला जाता है, ठीक है। L1 L2 L1 हो जाता है R1 और R1 हो जाता है L1, जैसा अभी हम लोग देखे थे। ये ऐसे होगा R2, ये हो गया L2, यही चीज़ यहाँ भी होगा। तो फिर राउंड 2 के लिए फिर उसी प्रोसेस से ये जो लेफ़्ट सर्कुलर शिफ्ट है, फिर एक बार 56 बिट के साथ उस पर फिर से एक बार लेफ़्ट सर्कुलर शिफ्ट होगा, जो उसको 56 बिट के साथ एंटर करेगा, जिसके बाद परमुटेड चॉइस 2 में, और फिर यहाँ पर 8 बिट रिमूव कर दिया जाएगा और डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और 48 बिट का की 2 यहाँ पर जनरेट होगा और ये राउंड 2 में जाएगा। इसी तरह से राउंड 3, राउंड 4 और राउंड 16 तक की 16 इधर ये की जनरेट करता रहेगा और ये राउंड 16 कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर राउंड 16 व्हाट हैपन्स, देयर आर 2 हाफ्स, लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ। दीज 2 हाफ्स स्वैप विथ ईच अदर। लेफ्ट हाफ राइट हाफ हो जाता है, राइट हाफ लेफ्ट हाफ हो जाता है। सो दीज 2 हाफ्स स्वैप, 32 बिट स्वैप। देन इट एंटर्स इनटू इन्वर्स इनिशियल परमुटेशन, जो अभी हम लोगों ने देखा, और फिर वहाँ पर वो 64 बिट के रूप में साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। अब इसको थोड़ा और डिटेल में हम लोग समझते हैं कि राउंड फंक्शन में एग्जैक्टली क्या होता है। राउंड फंक्शन में एग्जैक्टली क्या होता है, तो राउंड फंक्शन में क्या होगा यहाँ पर हम और डिटेल में समझते हैं। ये जो है यहाँ 32 बिट का लेफ्ट हाफ है, 32 बिट का राइट हाफ है। लेफ्ट हाफ एज इट इज़ अभी पड़ा हुआ है। राइट हाफ जो 32 बिट का है वो एक P बॉक्स में इंटर करता है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन परमुटेशन। एक्सपेंशन इसलिए कि ये 32 बिट में 16 बिट्स ऐड हो जाता है, जिसको हम लोग आगे फिर समझेंगे। 16 बिट्स ऐड हो जाता है, सो दिस 32 बिट becomes 48 bit text. 32 bit text becomes, by addition of 16 bits, 48 bits text. Parallelly, there happens with the key also. Key is also divided into 2 halves. Left key of 32 bit and right key of 32 bit. Key is also divided into 2 halves. One is left key of 32 bit, another one is right key of 32 bit. Okay, now these two enters into permuted choice 1 यानी PC1 या P box 1। यहाँ पर से वही 8th बिट पैरिटी बिट ड्रॉप कर दिया जाता है। तो क्या होता है, ये 64 बिट जो था वो अब 56 बिट्स रह जाता है। अब इस 56 बिट का फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 2 इक्वल हाफ्स में। एक 28 बिट, फिर दूसरा 28 बिट, दूसरा भी 28 बिट, यानी लेफ्ट की ऑफ 28 बिट एंड राइट की ऑल्सो ऑफ 28 बिट। नाउ दिस एंटर्स इनटू लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट, यानी शिफ्ट यहाँ पर बिट्स का पोजीशन शिफ्ट किया जाता है। उसी तरह से राइट की भी लेफ़्ट सर्कुलर शिफ्ट में जाएगा, उसके भी बिट्स शिफ्ट होंगे। इसके बाद
ये दोनों परमुटेड चॉइस 2 यानी PC2 या P-box 2 में एंटर करेगा। जब ये PC2 में एंटर करेगा तो यहाँ पर से फिर 8 बिट्स का लॉस होगा, 8 बिट्स इसमें से फिर हट जाएंगे और ये 8 बिट्स ही 48 बिट का की बनाएगा, जैसा अभी हम लोग देखे थे यहाँ पर, ये दिस वन। इसी को हम लोग और इलेबोरेट करके यहाँ पर समझ रहे हैं। तो ये अब 48 बिट की हो गया। ये जो हमारा राइट हाफ है वो भी एक्सपेंशन परमुटेशन से होके आया तो 48 बिट हो गया। तो 48 बिट टेक्स्ट, 48 बिट की, इन दोनों का एक्सॉर ऑपरेशन हो जाता है, एक्सॉर। एंड आफ्टर एक्सॉर ऑपरेशन the text remains of 48 bits again. Now this 48 bit text enters into a substitution box, which is in short called S box, substitution box. In substitution box, what happens? There are 8 boxes. 8 boxes means each box contains 6 bits. यानी all these 48 bits are distributed among these 8 boxes, S1, S2, S3 and S8 up to S8. And here what happens? 16 bits are lost. So now the text becomes 32 bit size. Size of the text becomes 32 bit. Okay. क्या हुआ? एक्सपेंशन परमुटेशन से 48 बिट का टेक्स्ट आया, इधर से 48 बिट का की आया, इसका एक्सॉर ऑपरेशन हुआ। इसके बाद ये 48 बिट का टेक्स्ट कहाँ चला गया? एस बॉक्स में, जिसमें 8 बॉक्सेस होते हैं, हर बॉक्स में 6 बिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक 6 बिट इसमें, अगला 6 बिट इसमें, अगला 6 बिट इसमें, इस तरह से। यहाँ क्या होता है? S1 S2 से लेके S8 बॉक्स में 6 बिट्स एंटर करता है, एक S1 में, तो 2 बिट्स यहाँ पर लूज़ कर जाएगा, ये हो जाएगा इसमें 4 बिट्स रह जाएगा, तो 4 बिट सब में, तो इन टोटल कितना हो जाएगा? 32 बिट। अब ये 32 बिट एंटर करता है एक परमुटेशन फंक्शन स्ट्रेट P बॉक्स में, परमुटेशन फंक्शन जिसको स्ट्रेट P बॉक्स कहते हैं, और यहाँ पर ये 32 बिट का रहता है। ठीक है। अब यहाँ क्या होता है कि लेफ्ट हाफ जो ये है ये भी 32 बिट का है, और ये राइट हाफ जो कई प्रोसेस से होके गुजरा है ये भी 32 बिट का है। इन दोनों का यहाँ पर एक्सॉर ऑपरेशन होता है। इस एक्सॉर ऑपरेशन के बाद टेक्स्ट जो मिलता है वो 32 बिट होता है। ठीक है। अब यहाँ क्या होगा? ये एक्सॉर ऑपरेशन करके ये राइट हाफ हो जाएगा, और जो ये राइट हाफ था वो लेफ्ट हाफ हो जाएगा। क्लियर? means right half gets stored in, copied into left half, and left half along with this XOR operation becomes the right half. Now these two becomes the input to the next round. Similarly here also the bits after LCS, कुछ बिट्स तो ये यहाँ चला जाता है परमुटेड चॉइस 2 में, LCS के बाद बिट्स कहाँ चला गया? परमुटेड चॉइस 2 में। फिर वही बिट्स अब अगले राउंड के लिए इनपुट हो जाता है। LCS के बाद जो रिजल्ट हुआ तो वो चला गया PC2 में, वही बिट्स फिर अगले राउंड के लिए लेफ़्ट की का काम करेगा, और उसी तरह से राइट की का जो LCS हुआ उसका एक पार्ट चला गया, वो चला गया परमुटेड चॉइस 2 में। फिर वही बिट्स अगले राउंड के लिए राइट की का काम किया। सो दिस इज़ वन राउंड फंक्शन, दिस इज़ वन राउंड फंक्शन। तो ये की जनरेशन और इधर का ये राइट हाफ का जो प्रोसेस है, इधर का प्रोसेस, दोनों पैरेलली साथ साथ चलता रहता है। क्लियर है? तो इसमें अभी और भी बहुत सारी चीज़ों को हमें समझना है। एक्सपेंशन परमुटेशन, परमुटेड चॉइस 1, परमुटेड चॉइस 2, लेफ्ट सर्कुलर शिफ्ट, उसी तरह से एस बॉक्स को समझना होगा, परमुटेशन फंक्शन को समझना होगा, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और उसको हम देखना नहीं भूलेंगे, नहीं तो फिर ये अधूरा रह जाएगा। थैंक यू।